Yes, friends, good morning to all of you. Friends, we are on the 14th question and today we are continuing with the that sum. Ready? So let's see the friend 14th question. Already we have discussed in the last class how to do this. So let's start our journal entries. So you can see is that already we have tick marked the adjustment everything, right? So now we are starting. The first entry I can see is machinery, right? So let's see the machinery. So how to pass an entry for the machinery? The first entry that we have to pass it, just 1 minute. So first entry that we have to pass it, which one? I can see is that first entry I can see is that revaluation is debited and machinery is on the debit side. So first entry that we have to pass it's revaluation account debited, revaluation account debited. Two, we can make combined entry also. I think we can make 2 to 3 entry combined only, no problem. Machinery revaluation account debited to machinery account to furniture account. To machinery account to furniture account. To investment account. 3 entries we can make at a stretch. Right? And amount comes to us an amount 35, 5 and 3. So it comes to 35,000, 5,000 and 3,000. So finally comes 43,000. Second entry. You can pass the other entry also, but I have made a combined entry. Okay, no problem. Then comes bad debt reserve and stock and outstanding expense. Okay, 2 entries we can make, or we can make 1 entry. Let's see the 1 entry. That also will be more clear. So you know what I'm doing? Revaluation is debiting. That's why on the debit side. Revaluation to bad debt reserve account. It comes to 10,000. Clear? Third comes the concept. Stock and outstanding expenses. Let's see. Revaluation account debited to stock account to outstanding expense account and to bank overdraft interest. To bank overdraft interest account. So let comes the stock. Stock comes to 3,000, 2,000 and 1,500. 3,000, 2,000 and 1,500. So 3 plus 2, 5 plus 1. It comes to 6,500. Clear? Now comes, friends, the credit side. Now we can see that revaluation is credited. So how to pass an entry? Again, the same thing is very easy. Land and building account debited. Creditors account debited. Income receivable account debited. To revaluation account. So 10,000, 6,000, 3,000. 10,000, 6,000, 3,000. So it comes to 19,000. Clear? So this is the journal entry we have passed for revaluation account. Now let's see this one, general reserve and workman accident compensation fund. These both are accumulated profit. So how to do that one? Give the heading distribution of
accumulated profit. Distribution of accumulated profit. The first name comes to us, general reserve, account debited. Second name comes to us, workman accident compensation fund. Why bracket? You know it. It has some different amount. General reserve is 80,000, while workman compensation fund comes to 23,000. In that 5,000 is for compensation, that is 18,000. To whom we have to give? To the first name comes to us, to Dattu's capital, Daya and Tarak. So little bit space problem will come to me. To Dattu's, I'm just removing it, and then we can do one more time. Okay, so let's see, friends. I'm taking from here, so it becomes more easy. General reserve account debited, workman accident compensation fund account debited. In workman accident compensation, I can see 23,000 minus 5,000. So it comes to us 18,000, while general reserve is 80,000, and we have to distribute to three partners. The first name comes to us, to Dattu, Daya and Tarak. To Dattu's capital account, to Daya's capital account, to Tarak's capital account. Now we want the ratio. Which ratio? It's 4:3:2. 4:3:2. So start doing. 80 plus 18, it comes to 98. 4 plus 3, 7 plus 2, 9. Into 4 divided by 9. It comes in point. So let's see 1 and 1. Let's take 80,000 then. 80,000 into 4 divided by 9. It also comes in point. The mistake is there. General reserve 16 plus 12 plus 8. It's 36. Some mistake is there. Yes. General reserve, it's not 80. It's 36,000. That's right. Okay. So do the correction, friends. It's not 80. It's 36,000. Because the point come, no, that is some mistake. 36 plus 18. It comes 54,000 into 4 divided by 9. Yes. Now it comes 24,000. Right. अलग अलग भी कर सकते हैं. Into 3 divided by 4. It comes 18,000. Into 2 divided by 3. It comes 12,000. साथ में भी कर सकते हैं. Here completes the entry. Now I can see profit and loss, accumulated loss is there. Loss which balance? Asset. Asset में कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट साइड. तो ये क्रेडिट होगा और डेबिट में किसका नाम आएगा? बाकी पार्टनर्स का नाम. So how to do? Dattu's capital account debited, Daya's capital account debited, Tarak's capital account debited, to profit and loss, accumulated loss. कितना दिया है? It accumulated loss है 27,000. So right here 27,000. Ratio हम already जानते हैं 4, 3 and 2. So let's see. 27,000 into 4 divided by 9. It comes to 12,000. Into 3 divided by 4.
it comes to 9,000 into 2 divided by 3, it comes to 6,000. So here completes the normal journal entries. Now we are left with only one, whether it's a loss or profit. For that, we have to make the total of revaluation, right? We have to prepare, sorry, we have the revaluation. So direct entry we can pass. It's again the credit side. So again, Dattu's capital account debited, Daya's capital account debited, Tarak's capital account debited to revaluation. And what is the profit? 40,500. So just fill up the figures, is nothing is there. Just fill up these figures. Okay, from revaluation. So after completing this, next part is we have to, this is the whole journal entry. They have passed one entry, land and building, revaluation. Okay. They have passed in such a way. We have passed in that way. It's one and the same thing. Now let's see how to do this particular sum. Capital, we have to go to partners capital credit side. Partners capital credit side by balance brought forward. Then general reserve. Then workman compensation reserve. Clear? After that, we can see is that 9% bank loan. So no point is there. So it comes in the liability. Capital, Dattu, Daya, Tarak, workman compensation will come automatically. 9% claim, 40,000. Clear? Then comes creditors, bill payable and bank overdraft. So creditors point is there. Bills payable outer column and bank overdraft tick mark is there, inner column 8,000 plus 1,500. After that, what we can do in asset side, land and building, machinery, furniture, investment. Land and building, machinery, furniture and investment. Clear? After that, debtors, bad debt and bad debt reserve. So debtors, bad debt reserve. Then comes bill receivable, stock and cash balance. Bill receivable, stock and cash balance. Profit and loss that we have to take towards the debit side to profit and loss. Clear? So now we are starting with the adjustments. So adjustment, they are saying what? मशीनरी डेबिट हुआ है तो कम होगा, तो मशीनरी में माइनस करेंगे. सो इस हिसाब से क्रेडिट हुआ है तो वी विल ऐड इट, डेबिट हुआ है तो हम माइनस करें. फर्नीचर डेबिट हुआ है, माइनस हो रहा है. इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रहा है, माइनस. बैड डेट रिजर्व बोला है कि बढ़ा दो, इसलिए 6,000 ऑलरेडी है प्लस 10,000 हमने और किया है, 60. बिल रिसीवेबल 5, स्टॉक में भी वैसे ही करना है, इंटरेस्ट वैसे ही करना है, क्रेडिटर में वैसे करना है. अब इसका टोटल आएगा, रिवैल्यूएशन भी वहां से आप लिख सकते हो, राइट. अब इसका टोटल करो आप, इट्स मेक द टोटल आएगा दत्तू का 1,24,000. क्लियर? इसमें आपको समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं और एक एक पॉइंट को हम लेके एडजस्ट कर रहे हैं. इसका टोटल आएगा 68,000 और इसका टोटल 62. ये सेम टोटल यहाँ पे लिखना है. माइनस करो, यू गेट दिस बैलेंस 94, 45, 547. अब वो बैलेंस आपको ले जाना है बैलेंस शीट. 94,000, 45,000, 547. तो 186,500.
फिर वर्कमैन कंपनसेशन का 5,000 आया, 9% बैंक लोन 40,000 बराबर, क्रेडिटर्स का 44, बिल पेबल 60, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब, एंड देन यू मेक द टोटल, यू गेट दिस फिगर. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस चैप्टर इज नाउ बीन कंप्लीटेड. तो हमने क्या क्या देखा है उसके बारे में एक शॉर्ट रिविजन मैं करवा रहा हूँ. राइट, तो क्या क्या हमने देखा इस चैप्टर में. व्हाट वी हैव सीन इन दिस टॉपिक, द फर्स्ट हमने पढ़ा था sacrifice ratio. Right, after this chapter we are going to learn the admission chapter हम शुरू करने वाले हैं. राइट, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू. सेकेंड हमने पढ़ा है गेनिंग रेशियो, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. थर्ड हमने पढ़ा है रिवैल्यूएशन के बारे में हमने पढ़ा है. और फोर्थ हमने पढ़ा है रिगार्डिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस के बारे में. अब सैक्रिफाइस में आंसर अगर प्लस में आता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस बोलते हैं. और इसमें आंसर अगर माइनस में आता है तो ये उल्टा हो जाता है, दैट इज गेन. गेनिंग रेशियो में भी अगर आंसर प्लस में आता है तो इसे हम कहते हैं गेन, और इसमें अगर आंसर माइनस में आता है तो हम इसको कहते हैं सैक्रिफाइस. सही है. रिवैल्यूएशन में क्या होता है, इसमें दो कैटेगरी होती है, एसेट और लायबिलिटी. एसेट का वैल्यू अगर बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी कम होगा तो बोलो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि हमको फायदा हो रहा है. और वैसे ही एसेट का वैल्यू घटेगा और लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो हमको नुकसान होता है, तो रिवैल्यूएशन क्या करेंगे, डेबिट. तो ऐसा सिस्टम है इसका. राइट, ऐसा सिस्टम है इसका. रिवैल्यूएशन में ये आपको ध्यान रखना है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है. इसमें पहला कंसेप्ट है जनरल रिजर्व, उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद आता है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ये भी आता है. फिर आता है रिजर्व फंड. ये सब को हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से पहचानते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. एक्यूमुलेटेड लॉस में सिर्फ एक ही चीज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस. ये है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, इसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस. थर्ड जो कैटेगरी है वो है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड. ये एक्चुअली क्या होता है, इट्स अ लायबिलिटी, इसे बांटा नहीं जाता है, इट्स अ लायबिलिटी. लायबिलिटी में आपको ये लिखना है. ओके, लायबिलिटी में आपको ये लिखना है. ओके, तो ये हुआ अपना पूरा कंसेप्ट हमने जो पढ़ा. ये सम्स हमने शुरू किए थे यहाँ से, बराबर. ये टॉपिक हमने पढ़ा था एक्सरसाइज के सम से. ये पूरा प्रैक्टिस, ये सारे चैप्टर में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है. ठीक है, इसके वर्कशीट भी मैं आपको दे दूंगा अभी. तो आप ये जैसे ही कंप्लीट हो गया आपका वर्कशीट, आप कंप्लीट करो उसको. ये रिवैल्यूएशन के बारे में हमने पढ़ा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं. फिर ये कौन सा टॉपिक है बताओ, ये है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस का टॉपिक है. इसमें जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क की एंट्री आती है.
ये होने के बाद हमने पढ़ा पूरा सम, सब कुछ एक साथ, जिसमें ये मैंने पूरा कराया, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट कैसे बनता है एक साथ, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और ये बैलेंस शीट। फिर दत्तू दया का एक सम करवाया मैंने आपसे, ये भी हो गया लास्ट टॉपिक। राइट, वी आर लेफ्ट विद सम 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, तो वो पहले कम, ठीक है ना, पीरियड एंड नहीं कर सकते हैं। सो सम एक बार, ये सम हम फिर से एक बार रिवीजन में डालते हैं, तो क्या है आपको भी थोड़ा याद रहे। आई थिंक you can take the 14th question, राइट। चलो 14 में फिर से एक बार देखते हैं क्या करना था। रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ है मतलब नुकसान हो रहा है। रिवैल्यूएशन क्या हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी डेबिट हुआ है। तो एंट्री कैसे होता है इसका पता है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, डेबिट हो मतलब डेबिट में आएगा, टू मशीन अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू बैड डेट रिजर्व। हम साथ में भी लिख सकते हैं। अब देखो टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में मैंने अभी आपको सॉल्यूशन बताया, सब में अलग अलग करके बताया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आल्सो वी कैन डू, या फिर आप साथ में भी लिख सकते हैं, इज वन एंड द सेम थिंग। फिर हमें क्या देखना था कि ये कैपिटल, ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। एक बार पूरा रिविजन हो जाएगा तो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। जनरल रिजर्व, ये भी है पार्टनर्स में जाएगा, पार्टनर्स में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, जिसमें 5,000 देना है और बाकी का हम कहाँ दे देंगे, पार्टनर्स कैपिटल। 9% बैंक लोन, तो नाम ही है नॉन करंट, तो नॉन करंट। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, और जिस पे भी टिक है उसमें लाइन छोड़ना है, वो तो पता है। नॉन करंट एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है। करंट एसेट में डेटर्स, बैड डेट रिजर्व, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, कैश बैलेंस, राइट। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बराबर। तो यहां तक हुआ है हमारा। फिर हमें पढ़ना था, फिर हमको पढ़ना था पार्टनर्स कैपिटल। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें क्रेडिट में सिर्फ मैक्सिमम 3 चीज आती है। एक बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आती है, एक जनरल रिजर्व आती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर प्रॉफिट है तो आएगा। डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट में आएगा। और ये मेन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आपको ध्यान रखना हो सके तो पूरा सिस्टम के हिसाब से, जैसे कि देखो कैपिटल पहले लिखा, फिर अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर करंट लायबिलिटी। देखो उसके हेडिंग के नीचे ये सब हमें लिखना है। हियर ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर नॉन करंट एसेट, और यहाँ से डेटर से हम क्या हो जाता है, करंट एसेट, राइट। तो इससे क्या होगा, एकदम सिस्टमैटिक रहेगा हमारा काम। ओके ओके देन, तो यहाँ तक आप कंप्लीट करो अच्छी तरीके से, राइट। तो पूरा चैप्टर हुआ है आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का, राइट। इसके साथ हमारा टोटल 4 टॉपिक कंप्लीट हुआ है। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, सेकेंड अपना फाइनल अकाउंट, राइट, सब में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। थर्ड अपना आएगा गुडविल के पूरे टॉपिक, याद है 4 कंसेप्ट हमने पढ़े थे गुडविल। और फोर्थ हमारा था रिकंस्ट्रक्शन। फिफ्थ हम पढ़ेंगे एडमिशन। सिक्स्थ आएगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सेवेंथ है डिसोल्यूशन। ये पूरा फ्रेंड्स ये है पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें ये 7 नदी पार करनी पड़ेगी, तब जाके ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। और उसके बाद फिर से हम जाएंगे पार्ट 2 में।
राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। अभी तो सिर्फ बोलते हैं ना अकाउंट्स तो शुरू किया है। इंट्रोडक्शन का वेटेज आप जानते हो 4 मार्क है, बस इसी का वेटेज, राइट, 4 मार्क्स। इसका वेटेज 6 मार्क्स। मेन तो यही था जो 11 मार्क का है। अब यहाँ से इस चैप्टर का वेट 8 है, इसका 8 है और इसका भी 8 है, राइट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है तीनों, हमें बराबर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा। ओके। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में याद है क्या क्या है, पढ़ा है कुछ आपने? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप रिविजन है। फाइनल अकाउंट, उसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके देन, प्रैक्टिस करो बराबर, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में एडमिशन का चैप्टर लेके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।